Rahim. Dear student, this is our lecture number 6 regarding the national pharmacopoeia of the course Biol 736 General Pharmacognosy. As I already told you that this lecture number 6, the main aim of this lecture number 6 is to discuss the national pharmacopoeia, and we will learn this national pharmacopoeia by explaining two pharmacopoeias. One are two famous pharmacopoeia, or what we can say the two most influential pharmacopoeia of the world. One that is the British pharmacopoeia, and second one that is the United States pharmacopoeia. So technically, when we are discussing the pharmacopoeia, the nomenclature which is technically used is the suffixes, or what we can say the short names. Like British pharmacopoeia, word BP is used. For United States pharmacopoeia, that is the USP, and for Indian pharmacopoeia, that is the IP, like this, that is used. So when someone who follow the United States pharmacopoeial standard, so they just write the USP. USP is stand for the United States pharmacopoeia. So let's start with the national pharmacopoeia first, that what is a national pharmacopoeia. ऑलरेडी हम इससे पिछले लेक्चर में हम फार्माकोपिया के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड इन दोज प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू द इंट्रोडक्टरी background, or what we can say the historical development of the pharmacopoeia, that range from a city pharmacopoeia to national pharmacopoeia. Like we had the Dublin pharmacopoeia, we have Edinburgh pharmacopoeia, we had the London pharmacopoeia, and due to the certain issues that within the same country there are three different pharmacopoeia, on the city level they were regulated, and ultimately that create a lot of confusion for the drug industry and drug trafficking and drug what we can say the business or trading. So that's why they merge all the three pharmacopoeia, and that was the start of a national pharmacopoeia. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल फार्माकोपिया, अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो दैट इज़ अ बुक कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड एक्सीपियंट्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन थ्रू आउट द कंट्री. ये एक्सीपियंट का वर्ड मैं आपको मेडिसिन और ड्रग में बता चुका हूँ कि देखें मेडिसिन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इनर्ट होती हैं, जो एक्टिवली ड्रग तो वो है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो उसका वो हम कह रहे हैं उसको, लेकिन उस ड्रग को कैरियर के तौर पर उसको यूज़ के लिए हमारे पास एक्सीपियंट्स भी होते हैं. सो स्टैंडर्ड जिस बुक के अंदर ये लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग या एक्सीपियंट होगा और वो नेशनल लेवल पे अगर होगा, कंट्री लेवल पे होगा, तो वी विल कॉल इट द नेशनल फार्माकोपिया. चूँकि ये फार्माकोपिया है, सो इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी यूजुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, and it comprises list of pharmaceutical substances, formulae along with their description and standard. So यहाँ पर मेरे पास आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया हैं, जिनमें से ब्रिटिश है, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रियन, बेल्जियम, ब्राज़ीलियन, ब्रिटिश, चाइनीज़, इंडियन, यूनाइटेड स्टेट, और इस तरह बेतहाशा और लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट है. ये यहाँ पे मैंने 3-4 को हाईलाइट किया है, जिसमें ब्रिटिश है, चाइनीज़ है, इंडियन है, यूनाइटेड स्टेट. ये हम को आगे चलकर इनके बारे में आपको डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने आपको वो हाईलाइट किए हैं यहाँ पर. ये एक टाइमलाइन है, इसमें बताया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ आप देखें until 1800, 1800 to 1870, 1871 to 1950, 1950 to 1951, और फिर 63, और फिर 85, और फिर 2020, और फिर बियॉन्ड 2020. ये आपको मुख्तलिफ टाइम लाइन बता रही हैं कि उसमें फार्माकोपियल वर्ल्ड लेवल पे क्यों इनसे जो है फार्माकोपिया क्रिएट हुए. इस तरह मुख्तलिफ जो इस टाइम लाइन के साथ साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने फार्माकोपिया डेवलप किए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड दैट इज़ द ब्रिटिश फार्माकोपिया. ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको हम बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. It is annually published collection of the quality standard of the UK medicinal substances.
It is used by the individual and organization involved in the pharmaceutical research, development, manufacturing and testing. अगर हम फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो दे आर पब्लिकली अवेलेबल एंड लीगली इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड एंड ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट इन देयर कंस्टिट्यूएंट्स. The British Pharmacopoeia is an important statutory component in the control of medicine, which complement and assist the licensing and inspection process of the Medical and Healthcare Regulatory Authority (MHRA) of the United Kingdom, together with the British National Formulary (BNF) and the British Pharmacopoeia define the UK pharmaceutical standards. तो ये इसका थोड़ा सा स्टैट्यूटरी या आईनी हैसियत थोड़ी सी आपको हमने यहाँ में बताई कि इसमें जो है तो बेसिकली जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है इसको बड़ी एक स्टैट्यूटरी कंपोनेंट हासिल है और ये कंट्रोल जो मेडिसिन का तमाम जो MHRA जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है तो वो इसके ज़रिए करती है, मतलब इसके रूल्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है. और इसके साथ साथ ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे. हिस्ट्री थोड़ी सी ज़रूरी है क्योंकि नेशनल फार्माकोपिया की बुनियाद ब्रिटिश फार्माकोपिया से हुई, तो इसलिए हम इसकी हिस्ट्री जो है तो वो ज़रूर डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट एडिशन ऑफ व्हाट इज़ नाउ नोन एज द ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1864 वाज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज द फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड through the merger of the London, Edinburgh, Dublin Pharmacopoeia. New Latin name that has some currency at that time was the Pharmacopoeia Britannica or PHBR. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट एडिशन इस वक्त जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के नाम से हम लोग जानते हैं वो फर्स्ट एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ था. और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले सिटी फार्माकोपिया थे और लंदन, एडिनबरा और डबलिन में 3 फार्माकोपिया, हर एक शहर का अपना फार्माकोपिया था. तो उनको मर्जर से जो बना था तो वो ब्रिटिश फार्माकोपिया था. और उसके फिर लैटिन नेम आप ब्रिटिश फार्माकोपिया को फार्माकोपिया ब्रिटानिका और इस तरह के नाम भी इसके लैटिनाइज नाम हो सकते हैं. अ कमीशन वाज फर्स्ट अपॉइंटेड बाय द GMC, जर्नल मेडिकल काउंसिल, व्हेन द बॉडी वाज मेड statutorily responsible under the Medical Act of 1858 for producing a British pharmacopoeia on the national basis. In 1907, the British Pharmacopoeia was supplemented by the British Pharmaceutical Codex, which gave information on drug and other pharmaceutical substances not included in the BP and provide standard for these. लाइक इसमें जो हम फार्माकोपिया कमीशन की बात कर रहे हैं कि पहले सबसे पहला जो कमीशन था वो उसको GMC जो जनरल मेडिकल काउंसिल है उसने वो किया था. और उसको जो आईनी वो या स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी वो मेडिकल एक्ट 1858 से मिली थी कि वो क्या करे GMC जो है वो उस कमीशन कि वो एक फार्माकोपिया जो है नेशनल फार्माकोपिया को प्रोड्यूस करे. 1907 में जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया में फिर फार्मास्यूटिकल कोडेक्स ही आगे आ रहा है, इसमें हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के, तो वो भी उसको साथ शामिल हो गया. और इस तरह फिर जो द मेडिसिन एक्ट 1968 एस्टेब्लिश द लीगल स्टेटस ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन एंड द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द UK स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट. ये वो 3 फार्माकोपिया हैं जिनकी मैं अभी 2-3 दफ़ा बात कर चुका हूँ. पहला लंदन फार्माकोपिया है, दूसरा एडिनबरा फार्माकोपिया है, तीसरा डबलिन फार्माकोपिया है. और ये उनके एडिशंस हैं. आप देखें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सबसे ज़्यादा लंदन फार्माकोपिया के 13 एडिशन 1851 में लास्ट आया था. एडिनबरा के 12th एडिशन 1841 में लास्ट आया था. डबलिन के जो है 1856 और ये इसका 4th एडिशन था 1856. उसके बाद जो है ये मर्जर हो गया था इनका. The British Pharmacopoeia Commission continued the work of the earlier commission appointed by the GMC and is responsible for preparing new edition of the British Pharmacopoeia and British Pharmacopoeia Veterinary and for keeping them up to date. Under the section 100 of the Medicine Act, the British Pharmacopoeia Commission is also responsible for selecting and devising British approved names. इन पे भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि what are the British approved names. Since its first publication back in 1864, ये जो ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि तीनों जो हैं तो जम हो गए और जम होने के बाद 1864 में इसका पहला पब्लिकेशन आया. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया हैज ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड नाउ यूज इन ओवर 100 कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है. ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा आर द 2 ऑफ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द BP एज देयर नेशनल स्टैंडर्ड. उन दोनों मुल्कों में जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में
नेशनल उन्होंने फार्माकोपिया के तौर पे इसको लिया है। इसके अलावा साउथ कोरिया इज़ द बीपी रिकग्नाइज एज एन एक्सेप्टेबल रेफरेंस स्टैंडर्ड, तो पाकिस्तान में भी है। The first edition of British Pharmacopoeia was published in 1864. It consists of two sections, Materia Medica and Preparation and Compounds. Second जो है वो 1864, fourth 1898, fifth 1914, एट्थ जो है वो 53 और इसके बाद ये एनुअली पब्लिश होता रहा। अगर हम कंटेंट की तरफ जाएं और देखें कि इसके कंटेंट क्या हैं, तो कंटेंट में हमारे पास जो है द करंट एडिशन जो फार्माकोपिया के है वो उसमें 6 इसके वॉल्यूम्स हैं, विच मे कंटेन अबाउट 3000 मोनोग्राफ ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज, एक्सीपिएंट, फार्मूलेटेड प्रिपरेशन टुगेदर विद द सपोर्टिंग जर्नल नोटिस, अपेंडिसेस, टेस्ट मेथड, रिएजेंट्स, reference spectra used in the practice of medicine, all the comprehensively indexed and cross-referenced for easy references, and item used exclusively in the veterinary in the UK are included in the BP veterinary. थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन आपको आसानी से कर देता हूँ कि 6 वॉल्यूम हैं जो आगे मेंशन भी हैं। वॉल्यूम 1, 2 में क्या है, मेडिसिनल सब्सटेंसेज हैं, वॉल्यूम 2 में क्या है, वॉल्यूम 3 में, 4 में, 5, 6 में। तो इनमें मोनोग्राफ हैं और ये मोनोग्राफ कुल मिला के कोई 3000 के करीब मोनोग्राफ बन रहे हैं। इनमें आप देखें तो आपके पास जो है ड्रग सब्सटेंसेस भी हैं, एक्सीपिएंट्स भी हैं, फार्मूलेटेड प्रिपरेशंस भी हैं और जर्नल नोटिसेस वगैरह भी हैं, अपेंडिसेस हैं जिसमें टेस्ट, अगर आपने एनालिटिकल टेस्ट करना है ड्रग की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए तो उसका टेस्ट, उसका मेथड, उसके लिए रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होंगे, उसका रेफरेंस स्पेक्ट्रा क्या होगा, कि यानी अगर आप मार्केट से कोई मेडिसिन उठा के उसको टेस्ट कर रहे हैं लैब के अंदर तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेडिसिन वो क्लेम कर रहा है कि मैंने ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाई है, तो आया ये वही है जो ओरिजिनल ब्रिटिश फार्माकोपिया की ड्रग है। तो वो आपको इन रेफरेंस स्पेक्ट्रा से पता चलेगा। जब आप उनका फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफिक या उनका जो है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे तो आपको जो स्पेक्ट्राज आएंगे तो वो स्पेक्ट्रा जब आप मैच करेंगे रेफरेंस स्पेक्ट्रा के साथ तो आपको उससे उसकी क्वालिटी या अडल्ट्रेशन का अंदाज़ा होगा, उसकी प्योरिटी का अंदाज़ा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर वेटनरी मेडिसिन के लिए जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश बीपी वेटनरी जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी अलग से जो है तो वो पब्लिश कर रही है और आप देख रहे हैं वॉल्यूम 5 में और वॉल्यूम 6 में ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी का सेक्शन मौजूद है। ये प्रोडक्शन इसकी जो हो रही है दैट इज़ द फार्माकोपियल सेक्रेटरेट। एक सेक्रेटरेट है बाकायदा जो इसको प्रिपेयर करता है, विच इज़ वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद द ब्रिटिश फार्माकोपिया लेबोरेटरी, द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन एंड एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप EAG एंड एडवाइजरी पैनल। ये सब मिलकर जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटरेट से ये पब्लिश होता है और इसके ये फिर कंपोनेंट है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन है, ब्रिटिश फार्माकोपिया लेबोरेटरीज है, एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, एडवाइजरी पैनल है। इनकी अपनी अपनी कंपोजिशन है जो कि एक्ट ने बताई है और एक्ट के मुताबिक इसके मेंबर आते हैं सारे। द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड रिसीव इनपुट फ्रॉम द रेलिवेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, एकेडेमिया, प्रोफेशनल बॉडीज, गवर्नमेंट सोर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द UK. A new website for the British Pharmacopoeia Commission opened in 2008. The British Pharmacopoeia is available as a printed volume and electronically in both online and CD-ROM version. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इनके यहाँ पर जो इनपुट आती है या जो इसमें सारा तो वो इसमें एक ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन के साथ साथ ब्रिटिश फार्माकोपिया लेबोरेटरी भी है विच प्रोवाइड द एनालिटिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसका काम क्या है, 2 मेजर काम करती है। नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ द न्यू फार्माकोपियल मोनोग्राफ। द लेबोरेटरी अंडरटेक द डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट मेथड for the new BP monograph specification and refine the revalidate test method for existing British Pharmacopoeia monograph. British Pharmacopoeia chemical reference substance BPCRS जिसको हम कहते हैं the laboratory है which is responsible for the procurement, establishment, maintenance and sales of PBCRS. The catalog currently containing 500 BPCRS जो British Pharmacopoeia chemical reference substances हैं। इसमें फिर आप जो हैं तो वेटनरी और आम दोनों में मौजूद है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज के आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम जिनको हम BANs कहते हैं ये क्या होता है।
British approved name is the official non-proprietary or the generic name given to the pharmaceutical substance as defined in the British Pharmacopoeia. यानी ये सिर्फ और सिर्फ जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जिनकी डिटेल आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया में मिलती है उनके जेनरिक नेम जो है तो उनकी लिस्टिंग होती है सारी. British approved name are devised or selected by the British Pharmacopoeia Commission and published by the Health Minister on the recommendation of Commission on Human Medicine to provide a list of name of substance or article referred in the section 100 of the Medicine Act 1968. British approved name है क्या चीज़? These are the short distinctive name for substance where the systematic chemical or other scientific names are too complex for convenient general use. उसकी एग्जांपल से आपको इस बात को समझाएंगे कि ये कैसे शॉर्ट और डिस्टिंक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल BN से हम एक नेम के अंदर लिस्ट के अंदर एक नाम है को एमोक्सिकल COAMOXICLAV को डैश एमोक्सिक्लेव. ये जो नाम है ये एक ड्रग का नाम है, यानी ये BN नाम है, शॉर्ट है, डिस्टिंक्ट. किस चीज़ का? ये एक ऐसी प्रिपरेशन का नाम है जो दो चीज़ों से मिलकर बनी है. कि CO जो है ये कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि ये बेसिकली यहाँ पर एक आप जो है तो ये कॉम्बिनेशन है. CO स्टैंड फॉर एमोक्सिक्लेव. एमोक्सी जो है वो उसके फर्स्ट इंग्रेडिएंट एमोक्सिसिलिन से आया है और क्लेव जो है कल्वोनिक एसिड जो है कल्वोलेनिक एसिड उसको डिटरमिन कर रहा है. तो को जो है इसका मतलब ये है कि कंबाइन हुआ है इसमें इस ड्रग में इन दोनों चीज़ों को. BN is also official name used in the some countries across the world because starting in 1953 proposed new name were evaluated by a panel of experts from WHO in conjunction with the BP Commission to ensure naming consistency worldwide, an effort leading to the international non-proprietary name system. This is also called as British approved name modified BANM. उसके बाद अगला जो इसमें एक आया था, शुरू में भी ये आया था, नाम हमने जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे आया था, मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर आपको मैं बताऊँगा. ये वो जो आपको यहाँ पे स्नैप लग रहा है ये पिछली स्लाइड का है. ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम 2017 जो इस वक्त सबसे रिसेंट है. तो ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम का वो यहाँ पे है. हम आ जाते हैं अगले उसकी तरफ जो ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी. ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी इज़ अ यूनाइटेड किंगडम फार्मास्यूटिकल रेफरेंस बुक that contain a wide spectrum of information and advice on prescribing and pharmacology along with the specific fact and detail about the many medicine available on the UK National Health Service NHS. Information within the BNF include indication, contradictions, contraindications, side effect, dose, legal classification, name, pricing or generic formulation and any other notable point. British Pharmacopoeia specify the quality standard and making of drug listed in the BNF. BNF जो है it is jointly authored by the British Medical Association BMA and Royal Pharmaceutical Society. It is published under the joint authority जो है जिसको Joint Formulary Committee JFC कहते हैं, वो इसको publish करती है. It was first published in 1949 as the National Formulary with updated version appearing every 3 years until 1976. The fifth version in 1957 saw its name changed to British National Formulary. पहले इसका नाम National Formulary था, फिर इसका नाम चेंज हो गया 57 में. 49 से जब ये National Formulary चला हर 3 साल बाद, और 57 में आके इसका नाम जो है उसके साथ ब्रिटिश का वर्ड लग गया, NF से BNF हो गया. By 2003 issue 46 of the BNF contained 3000 interaction or group of interaction with about 900 of these marked by a bullet. A new edition of BNF is published twice yearly in March and September. यहाँ पे जाते जाते आखिरी उसमें हम आ गए हैं जिसमें हम फार्मास्यूटिकल कोडेक्स को डिस्कस कर रहे हैं. BPC. The British Pharmaceutical Codex was first published in 1907 to supplement the British Pharmacopoeia, which although extensive did not cover all the medicine item that a pharmacist might require in daily work. तो देखें उसके कुछ रिस्ट्रेन है कि उसमें सारे के सारे फार्माकोपिया के अंदर जो है हर एक ड्रग नहीं आ सकती. कुछ ड्रग उसमें कवर उसके वो नहीं होती, उसके जो बाउंड्रीज हैं. तो ऐसे तमाम ड्रग जो उसकी बाउंड्री में नहीं आती या फार्माकोपिया कवर नहीं करता, लेकिन फार्मासिस्ट
या मेडिसिनल सिस्टम में वो यूज़ होती है, तो उसको फिर हम कोडेक्स में उन्होंने अलग तरीके से पब्लिश कर दिया. Other book exists such as the Square, such as BPC was intended to be official, published by the Pharmaceutical Society of the Great Britain. इसको पब्लिश करता था. Subsequent edition was published in 1911, 12, 23, 34, 49, 54, 59, 63, 68 and 73. The decision of the medical commission started that there should be only one book of standard of medicine, so BPC was discontinued. क्योंकि ये एट द सेम टाइम फार्माकोपिया भी था, एट द सेम टाइम फार्मास्यूटिकल कोडेक्स भी चल रहा था. तो 1973 में ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये रेड ऑरेंजिश रेड जो कलर है इसमें, तो यहाँ पे आकर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया. क्योंकि जो कमीशन वो था, एक्सपर्ट थे, वो यही कह रहे थे कि एक चलना चाहिए, दोनों नहीं, दोनों बुक जो है आप. फिर उसके बाद 1979 में दोबारा इसको पब्लिश करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको फिर एज एन इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश करना शुरू कर दिया. वो जो ऊपर आपको ग्रीन ब्लू कलर में नज़र आ रही है, जो 1994 में 12th एडिशन इसका इंसाइक्लोपीडिया का आखिरी पब्लिश हुआ, द फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के नाम से. पहले था ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स और फिर द फार्मास्यूटिकल कोडेक्स. इसके साथ हम नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं, द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, एंड दैट इज रिगार्डिंग द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, USPNF. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसको USP से जाना जाता है, इज द फार्माकोपिया कंपेंडियम ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन. ये डिफिनीशन है फार्माकोपिया का. फॉर द यूनाइटेड स्टेट, पब्लिश एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, usually also called as the USP, a non-profit organization that own the trademark and also own the copyright on the pharmacopoeia itself. The USP is published in a combined volume with the national formulary. A formulary जो अभी हमने इससे पहले भी देखा, वो अलग पब्लिश हो रही थी, जो ब्रिटिश फार्मूलरी था, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है वो कंबाइन हो रहे हैं. ये शुरू में नहीं था, बाद में आया. तकरीबन 4-5 वॉल्यूम इसके जब पब्लिश हो गए, तो उसके बाद से जो इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया था. ड्रग सब्जेक्ट टू USP स्टैंडर्ड इंक्लूड बोथ ह्यूमन ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर, अदरवाइज एन एनिमल ड्रग. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, इसमें 2 पार्ट है. ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ. बुक ऑफ द पब्लिक pharmacopoeial standard contains standard for the medicine, dosage form, drug substance, excipient, medical devices, dietary supplement. ये चीज़ इसमें ज़रा बाकियों से मुख्तलिफ है. डाइटरी सप्लीमेंट ये आगे आ रहा है. इट इज़ अ सिंगल वॉल्यूम कम्बिनेशन ऑफ द 2 ऑफिशियल कंपेंडिया, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी. 2 पार्ट ही हो गए, लाजमी बात है, क्योंकि नाम में इसमें वो मेंशन है. पहला पार्ट इसका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है और दूसरा जो है वो नेशनल फार्मूलरी है. It is the official pharmacopoeia of the United States and many other nation. बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको ऑफिशियल का दर्जा दिया हुआ है. पाकिस्तान में भी ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया दोनों जो हैं वो ऑफिशियली एप्लीकेबल हैं. इट इज़ द कंपेंडियम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ड्रग एंड एक्सिपिएंट टू बी इंट्रोड्यूस इनटू अ मेडिसिन फॉर्मुलेशन, इंक्लूड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन, essay, purity, determination of drug substance. इस तरह नेशनल फार्मूलरी इट्स अ सब मैनुअल containing a list of medicine that are approved on prescription throughout the country, including key information on the composition, description, selection, prescribing, dispensing and उसके अलावा जो है medicine, administration of the medicine. United States Pharmacopoeia or National Formulary Standard also have a role in the US federal law. Drug or drug ingredient with the name recognized as USNF is considered adult if does not satisfy compendial standard for strength, quality or purity. ये तो हर जगह पे ऐसा ही है कि कोई भी ड्रग जो है अगर उसके अंदर मौजूद है और उसने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी जो है तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी और वो अडल्ट्रेट ड्रग के तौर पे कंसिडर होगा. USP also set the standard for the dietary supplement and food ingredient.
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसका जो पार्ट है, क्योंकि ये बाकी उनसे इसको जुदा करता है, यानी इसको ये डिस्टिंक्शन है इसकी कि इसमें डाइटरी सप्लीमेंट और फूड इंग्रेडिएंट का भी स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर, जिसको फूड केमिकल कोडेक्स कहते हैं. यूएसपी हैज़ नो रोल इन इन्फोर्सिंग इन स्टैंडर्ड. इन्फोर्सिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएस FDA. यूएसपी जो है ये बेसिकली इसके अंदर, ये तो किताब है, इसके अंदर रूल रेगुलेशन ही लिखे होते हैं, लेकिन इसको जो इन्फोर्स करती है वो यूएस में FDA इसको कहते हैं, यूएस FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो इसको यूएस के अंदर इम्प्लीमेंट करती है. द फूड केमिकल कोडेक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर द प्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ फूड इंग्रेडिएंट. It feature roughly 1200 monograph including food grade chemical, processing aid, food such as vegetable oil, fructose, amino acid, flavoring agent, vitamin. इसके अलावा हमारे पास जो हैं तो इसके साथ साथ हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास जो है वाइटामिन हो गए, फंक्शनल फूड इंग्रेडिएंट हैं, लाइकोपीन, इस तरह की. दे आर नॉट फ्रीक्वेंटली फाउंड इन अदर फूड एडिटिव स्टैंडर्ड रिसोर्सेज. प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड वेरिफिकेशन, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या यूएसपी का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है. The USP standard for food ingredient can be found in the Food Chemical Codex (FCC), and FCC is a compendium of standard used internationally for quality and purity of food ingredient like preservative, flavoring, coloring, and nutrient. While the FCC is recognized in law in countries like Australia, Canada, New Zealand, it currently does not have a statutory recognition in the United States. यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इनके जो स्टैंडर्ड जो FCC है, ये कई कंट्रीज़ ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़, कि वहाँ पर इसको लॉ के तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में बजाते ख़ुद इसकी कोई स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं है, इन्फोर्समेंट नहीं है. Although FCC standards are incorporated by reference in over 200 FDA food regulation, USP obtained the FCC from the Institute of Medicine in 2006. The IOM has published the first 5 edition of the FCC. यानी जो पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है 2006 से पहले वो पब्लिश करते रहे हैं, तकरीबन 5 एडिशन उन्होंने पब्लिश किए. उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने उनसे ये ले लिया. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया आल्सो कंडक्ट वेरिफिकेशन प्रोग्राम फॉर डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट, जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती हैं उनके वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी है इनका. डाइटरी सब प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट का टेस्टिंग और ऑडिट प्रोग्राम भी करते हैं ये. प्रोडक्ट दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम कैन डिस्प्ले द यूएसपी वेरीफाइड डाइटरी सप्लीमेंट मार्क ऑन देयर लेबल. तो जिनका जो लोग टेस्टिंग और ऑडिट प्रोग्राम उनसे हासिल करते हैं और अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करवाते हैं यूएसपी से, तो फिर वो अपने मार्केट में जब वो चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगाते हैं कि यूएसपी वेरीफाइड डाइटरी सप्लीमेंट, उसके ऊपर बाकायदा मार्क होता है. दिस इज़ डिफरेंट ऑन द फ्रॉम सीइंग द लेटर यूएसपी अलोन ऑन द डाइटरी सप्लीमेंट लेबल. अक्सर आपने डाइटरी सप्लीमेंट के ऊपर सिर्फ यूएसपी लिखा होगा. एक होता है यूएसपी वेरीफाइड डाइटरी सप्लीमेंट और बाज़ के ऊपर सिर्फ यूएसपी लिखा होता है. ये उससे डिफरेंट इसलिए है कि अगर उसके ऊपर लिखा होगा कि वेरीफाइड डाइटरी सप्लीमेंट मार्क, तो इसका मतलब ये है कि वो मार्क का मतलब ये होगा कि वो यूएसपी वालों ने उसकी टेस्टिंग की और ऑडिट प्रोग्राम से गुजरा है और उन्होंने उसको वेरीफाई किया है. और अगर खाली यूएसपी है तो उसका मतलब ये है कि वो क्लेम ये कर रहे हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट वाले कंपनी कि हमने ये जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रख के की हुई है. यूएसपी डज नॉट टेस्ट द प्रोडक्ट, सो इट डज नॉट with the USP verified product. Another important जो इनका प्रोग्राम है यूएसपी का, वो प्रमोटिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम है. बड़ा फेमस और बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम है ये.
वर्ल्ड लेवल पे अगर हम इसको देखें, सिंस 1922 यूएसपी हैज़ वर्क कोऑपरेटिवली विद यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएसएड के ताउन के साथ ये 1992 से यूएसपी जो है ये कर रही है to help developing countries address critical issue related to poor quality medicine। पाकिस्तान भी उनमें शामिल है जहाँ पर ये जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम जो है उनमें यूएसएड के ताउन से वो मुख्तलिफ जो डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे पुअर क्वालिटी मेडिसिन है वहाँ पे उनके साथ ये वर्क करते हैं उनकी क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। This partnership operated as the Drug Quality and Information DQI program until 2009 when to better meet growing global need. USAID award USP a 5-year $35 million cooperative agreement to establish a new expanded program PQM promoting the quality of medicine. 2013 extended the PQM program for 5 years through though September 2019 increased its funding from 35 million US डॉलर से इसकी फिर फंड इंक्रीज़ कर दिया यूएसएड ने और इसको 110 मिलियन डॉलर दे रहे हैं और इसका जो जियोग्राफिक रीच है वो भी उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, दुनिया के ममालिक ज़्यादा ममालिक को उसमें शामिल कर दिया। PQM serve as the primary mechanism to help USAID supporting countries strengthening their quality assurance and quality control system to better ensure the quality of medicine that reach patient। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाने वाली कंट्रीज़ में शामिल है। USP USAID collaborative effort have helped community improving drug quality in more than 35 countries। PQM currently work in Africa, Asia, Europe, Eurasia and Caribbean and Latin America। यूएसपी जो है ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में नहीं है, ये बल्कि पूरी दुनिया में काम कर रही है, इंटरनेशनली काम करती है और ये जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसके इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। ये ज़्यादातर जो दूसरे ममालिक या बाकी फार्माकोपिया जो दूसरे उनके साथ ये एग्रीमेंट्स के ज़रिए ये काम करती है, एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उनके साथ भी ये एग्रीमेंट करती है। In recent year, USP signed a series of memoranda of understanding MOUs with group including the Pharmacopoeia of People Republic of China, a Chinese Pharmacopoeia Commission, 9 countries belonging to the ASEAN Association of Southeast Asian Nation, Federal Services on Surveillance and Health Care and Social Development of the Russian Federation. USP also operate an international office in Switzerland and offices and laboratory in Brazil, India and China. November 2014, a delegation from the Global Life Science Development Cooperation as part of the Montgomery Country Business Visit to the India visited US Pharmacopoeia Convention at IKP Knowledge Park in Hyderabad in India। इंडिया में जो इनकी लेबोरेटरी और जो इनका सेटअप है। अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखें तो 1820 में हमारे पास USP 01 का मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फर्स्ट वॉल्यूम नंबर 1 जो पहला आया वो आया। और वो कैसे आया कि 11 फिजिशियन मीट इन वाशिंगटन DC, 11 डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर फिजिशियन जिनको हम कहते हैं, मीट इन द वाशिंगटन DC जो उनका कैपिटल है अमेरिका का, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, टू एस्टेब्लिश द US फार्माकोपिया एंड द फर्स्ट कंपेंडियम द स्टैंडर्ड ड्रग फॉर द यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद 1830 में 10 साल बाद USP 02 आया। कमेटी ऑफ रिवीजन क्रिएटेड 7 मेंबर, फर्स्ट रिवीजन ऑफ द USP पब्लिश, रिवीजन कंटिन्यू एट 10 ईयर इंटरवल। फिर 1848 में USP 3 आया, ड्रग इंपोर्ट एक्ट पास हुआ, फेडरल लेजिस्लेशन रिकॉग्नाइज द USP एज एन ऑफिशियल कंपेंडियम। जिस वक्त ये 5वां USP 1988 में पब्लिश हो रहा था तो उस वक्त फिर उन्होंने नेशनल फार्मूलरी को भी अपने साथ जम कर दिया, द फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी पब्लिश बाय द अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। तो अब उसके बाद से फिर ये पब्लिश होना शुरू हुए। आप देखें कि उसके बाद 1990 में जब USP 22 हुआ तो NF 17 था, यानी वो जो गैप शुरू में 4 का चल रहा है कि 1 2 3 4 जो है ये बग़ैर नेशनल फार्मूलरी के पब्लिश हुए थे, तो उसके बाद 5वां था और वो 1 था, तो यहाँ पे 22 और 17 और 23 और 18 इसमें आप देखें हर साल जो है कि अगर हम हिस्ट्री में इनके तमाम ये 22-23 को देखते तो ये काफ़ी लंबा हम हिस्ट्री में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल के तौर पे
इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो हमने मेंशन किए हैं। 2000 में फिर उसका 24 और 19 था। इसमें क्या हुआ, यूएसपी जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूएसएड कोलैबोरेटिव एफर्ट इवॉल्व इनटू DQI, a program focus on improving the quality of medicine and their appropriate use in the resource limited countries। पाकिस्तान शामिल है उनमें, यानी इनके प्रोग्राम में 2000 में शामिल हुआ। यानी यहाँ पर उन्होंने यूएसएड के ताउन से और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जहाँ पे यूएसएड काम कर रही थी तो यूएसपी ने उनके साथ मिलकर वहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए काम शुरू कर दिया। 2006 में इन्होंने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको वेरीफाइड यूएसपी वेरीफाइड फूड इंग्रेडिएंट के वो बात बता रहा था। ये प्रोग्राम इन्होंने उसकी जो नहीं बल्कि ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम 2006 में था। 2006 में तो सिर्फ इन्होंने एक्वायर किया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से फूड केमिकल कोडेक्स का जो 5 वॉल्यूम वो पब्लिश कर चुके थे IOM वाले, और छठा फिर इन्होंने ले लिया, फूड केमिकल कोडेक्स अपने साथ शामिल कर दिया। तो जो 30th और 25 नेशनल फार्मूलरी था तो ओपन ऑफिस एंड लेबोरेटरी फैसिलिटी इन शंघाई चाइना, यूएसपी पब्लिश यूएसएनएफ एज द 3 वॉल्यूम सेट। फिर 2008 में 32-27 यूएसपी पब्लिश द यूएसपी डाइटरी सप्लीमेंट कंपेंडियम, फर्स्ट रशियन एडिशन ऑफ द यूएसपी NF पब्लिश, क्योंकि इनका ऑफिस वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका था, वहाँ पे इनकी इस्टेब्लिशमेंट 2011 में 35 जो 30 था। USP hosts the pharmacopoeial discussion group for the first time in the US. USP granted observer status by the Codex Element Commission. USP NF translated into Chinese। 2017 में 40-35 आया, 41 में जो है और 36 से 2018 में आया। USP launched the Medicine We Can Trust campaign to inspire the collective action and unify partner around the world to address the problem of poor quality medicine and still exists today। और 2019 में जो वर्जन आया वो SP 42 NF37 के नाम से जाना जाता है। जो इस वक्त इनका सबसे रिसेंट 19 वाला चल रहा है, तो उसमें वॉल्यूम जो है 3 वॉल्यूम है। पहले में जनरल चैप्टर्स हैं, 2 और 3 में जो है आपके पास मोनोग्राफ हैं, और उसके अलावा आपके पास कुल मिला के कोई 14 के करीब अपेंडिसेस हैं। और वो अपेंडिसेस आप देख सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में हैं। कहीं पे अपरेटस फॉर टेस्ट एंड एसेज हैं, फिजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन है, चीविंग गम बेस के बारे में भी हैं, एसेंशियल ऑयल फ्लेवर्स के बारे में, ओलियो रेजन, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, फेट्स, एंजाइम ऐसे। अच्छा, इसके अलावा फ्लेवर केमिकल हो गए एक्सेप्ट एसेंशियल ऑयल, क्योंकि एसेंशियल ऑयल उन्होंने अपेंडिक्स नंबर 6 इसके लिए अलग से रखा है। एडल्ट्रेंट एंड कंटामिनेंट इन द फूड ग्रेन, मार्कर फॉर ऑथेंटिसिटी टेस्टिंग। So that is all about the lecture number 6 which is regarding the national pharmacopoeia। और उसकी हमने 2 एग्जांपल देखी, और दोनों जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फार्माकोपिया हमने देखे जो दुनिया में इस वक्त बहुत सी ममालिक में लीगल स्टेटस है, और पाकिस्तान उनमें शामिल है। पाकिस्तान में इन दोनों को लीगल स्टेटस हासिल है। यानी पाकिस्तान की मार्केट में जो ड्रग इस वक्त मार्केटेड ड्रग है वो या ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करके यहाँ पर मार्केट कर सकती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर नंबर 6।